انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں، میری ان سے دوستی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، میری زندگی میں ان سے ایک ملاقات ہے اور وہ بھی ایک اتفاقاً. اچھا، وہ بندہ درود پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہے اور درود پڑھ کے ختم کرتا ہے. اس کو پہلے آپ گرفتار کرتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے ایم پی او کے تحت، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر آپ اس پہ توہین رسالت کا مقدمہ دائر. یہ درست ہے؟ ویسے یہ طریقہ کار درست ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو گورنمنٹ کا ایک ادارہ خط لکھتا ہے کہ اس پر اپنی رائے دے دیں. وہ ادارہ مرزا صاحب کا خط اس میں بھیجتا ہے جس میں مرزا صاحب نے خود لکھا کہ کونسل کو بھیجا جائے، جس میں مرزا صاحب نے خود لکھا کہ کونسل کو بھیجا جائے، جس میں مرزا صاحب نے خود لکھا کہ کونسل کو بھیجا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں اس طرح کا معاملہ بھیجا جانا چاہیے ہی نہیں تھا. یہ اگینسٹ دا رولز اینڈ لا ہے انویسٹیگیشن کے. اور ان کی طرف سے جو لفظ فیصلہ یہ جو ایشو کیا گیا ہے، یہ بھی انہوں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کیا ہے. اور احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ. ناظرین کرام، آپ کو آپ کے اپنے ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کے اس دوسرے ولاگ میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا. انتہائی اہم ولاگ ہے، انتہائی اہم ولاگ. اس ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا، سنیے گا، چونکہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آنے والی ہیں. مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے اعزاز سید صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے. اعزاز سید صاحب جو سینئر صحافی ہیں، اس انٹرویو میں بہت سارے انکشافات مولانا طاہر اشرفی صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، یہ رکن بھی ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب. اور جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بابت فیصلہ آیا یا فتویٰ نما رائے وارد ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے، تو اس کونسل کا حصہ مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی تھے. اب اعزاز سید صاحب نے مولانا طاہر اشرفی صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بابت سوال کیا کہ انجینئر صاحب پر توہین رسالت کا مقدمہ درج تھا اور آپ کی جانب ایک مراسلہ ارسال کیا گیا NCCI کی جانب سے کہ بھائی اس پر آپ کیا رائے دیتے ہیں، ہمیں بتائیے، تجویز دیجیے. تو آپ نے نہ صرف اس کی تردید میں کچھ کہا یا تائید میں کچھ کہا، بلکہ مزید مقدمات ایڈ آن کرنے کی سفارش کر دی اور اپنا فیصلہ سنا دیا. تو مولانا طاہر اشرفی صاحب نے کچھ وضاحتیں کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذرا آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، پھر ایک حقیقت سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. اور وہ حقیقت ایسی میں سمجھتا ہوں کہ دلدوز ہے کہ آپ ہل کے رہ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت بہت حساسیت اختیار کر رہا ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب کا ذرا کلپ دیکھیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں، میری ان سے دوستی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، میری زندگی میں ان سے ایک ملاقات ہے اور وہ بھی ایک اتفاقاً. اچھا، وہ بندہ درود پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہے اور درود پڑھ کے ختم کرتا ہے. اس کو پہلے آپ گرفتار کرتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے ایم پی او کے تحت، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر آپ اس پہ توہین رسالت کا مقدمہ دائر. یہ درست ہے؟ ویسے یہ طریقہ کار درست ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ٹھیک. اعزاز سید صاحب، میں نے کبھی بھی، مجھے نہیں یاد کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں میڈیا پہ بات کی ہو یا کسی یوٹیوب پہ یا کسی، کبھی بھی نہیں. ایک آدھ بار کوئی، لیکن وہ آپ پہ تنقید کرتے رہے. مجھے ایک آدھ بار کا پتہ ہے. اور میں اس لیے کہ میرا موقف اس شخص کے بارے میں روز اول سے یہ تھا کہ اس کو اہمیت دینا یا اس کو جواب دینا، یہ اس کو اہم بنانا ہے. اور یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کو میں جواب، میں بالکل واضح ہوں. بدقسمتی ہے یہ یوٹیوب آ گیا، یہ سوشل میڈیا آ گیا، یہ بکتا ہے. شہرت مال سے زیادہ بڑا مرض ہے. ایک ہوتا ہے مال جمع کرنے کا مرض، یہ شہرت اس سے بڑا مرض ہے. میں نے کبھی بھی اس کو ایون میں نے سنا ہی کبھی نہیں اسے. میں آپ کو ریئل بات کر رہا ہوں، آج بھی میرے سامنے. لیکن آپ نے نہیں سنا، لیکن لاکھوں لوگ سنتے ہیں. میں ابھی یہ ہم بات کریں نا کہ یار نماز پڑھو تو اس کو دیکھیں گے 15 لوگ، اور اگر میں اور آپ بات کریں کہ یار نماز چھڑ دو تو اسے دیکھیں گے 15,000 لوگ. یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تاریخ اسی سے بڑی پڑی ہے کہ جو شر کی بات ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ. آپ کے یہاں بریکنگ نیوز کبھی یہ بنی ہے کہ 1000 بندے نے فیصل مسجد میں نماز پڑھی؟ ہاں، اگر اس دن فیصل مسجد میں آئے کوئی نہ تو آپ کی ہیڈ لائن یہ ہوگی کہ آج فیصل مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا. یہ ایک نظام ہے بنا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو شروع کیا اپنا سلسلہ کار، ان کو مزہ آنے لگ گیا لوگوں کی تذلیل کرو، توہین کرو، ایسا کرو، اس کی ایک دن بریلویوں کو دل جیت لو، دوسرے دن دیوبندیوں کا جیت لو، تیسرے دن شیعہ کا جیت لو. یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے یہ. میں لیکن جو مرزا صاحب کا اسلوب تھا وہ غلط. دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، حضرت علی حجویری
90 लाख इंसान उस शख्स के हाथ पे मुसलमान होता है, मैं बैठ के उसका ठट्ठा उड़ाऊं यार, उसमें कुछ था तो 90 लाख बंदे ने हाथ उसके हाथ में दिया, आज भी उसका फैज जारी है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि उसके ऊपर आप तो इन्हें रिसालत का, मुझे मेरी बात प्लीज आप पूरी बात मैं ये आपको लेके आता हूँ। मिर्जा साहब भूल गए कि कहीं रेड लाइन भी होती है। ठीक, देखें जुमले दो हैं, लेकिन उन दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जुमला आपके अबू आए और एक जुमला है तेरी माँ यार आया, दोनों में फर्क है क्या? बिल्कुल ठीक। मिर्जा साहब जिस बुनियाद पर इस वक्त उनके ऊपर और आप सब हजरात ने बगैर यक तरफा निजाम चलाया हुआ है, मैं आप क्लास मेरी कौंसल आपने नहीं पूछा कि यार कौंसल वालों तुमने क्यों ये दिया है? इस्लामी नजरियाती कौंसल को गवर्नमेंट का एक इदारा खत लिखता है कि इस पर अपनी राय दे दें, वो इदारा मिर्जा साहब का खत उसमें भेजता है जिसमें मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसल को भेजा जाए, जिसमें मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसल को भेजा जाए, जिसमें मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसल को भेजा जाए। कौंसल अपनी राय देती है। अब आप कहते हैं हमारी मर्जी के बगैर क्यों राय देती? भाई कौंसल ने राय दी है, जज का काम है फैसला देना। लेकिन जो ड्राफ्ट आया उसमें लिखा हुआ फैसला, कौंसल का फैसला बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या हर्ज है? कौंसल का फैसला, कौंसल को तो आइन के मुताबिक फैसला का इख्तियार ही नहीं कौंसल है, को रिकमेंडेशन का है और ये हम अदालत में बताएंगे कि हमें है कि नहीं है। ठीक, ये तो आइन में लिखा हुआ रिकमेंडेशन, मैं आइन नहीं बताएंगे अदालत में, कानून ही बताएंगे अदालत में कि कहां पर हमें क्या इख्तियार हासिल है। ठीक। और ये एक मिनट, ये कोई एक केस तो नहीं कौंसल के पास आया, सुप्रीम कोर्ट कौंसल को केस भेजती है, हाई कोर्ट कौंसल को केस भेजती है राय के लिए, फैसले के लिए नहीं। एक मिनट, हमने तो अपना फैसला देना ना उस पे। ठीक, राय देनी है कौंसल ने अपनी राय कहें, फैसला कहें, जो भी कहें, फर्क है ना। नहीं फर्क नहीं है। जब कौंसल एक चीज को लिख रही है कि इसके मुतालिक ये बात है तो फैसला है कौंसल, उसको आप राय ये वो तब्दील नहीं हो सकता, और ये तो मुत्तफिका था। ठीक, मिर्जा साहब ने दो जो बातें जो हमें आई, देखें जो कौंसल के पास आई, दो बातें जो कुरान से मंसूब की, कुरान में कहीं नहीं है, ये तारीफ कुरान मानवी है, माने में आपने तो डबल कर दिया ना, उन पे तोहीन रिसालत का मुकदमा था, आपने कहा तोहीन कुरान भी हुई। हमें भाई आप लिखिए सुबह भेज दें, हमें इससे गरज नहीं कौन है, आप मिर्जा साहब का नाम हटा दें, आप उसकी जगह ए लिख दें। आप इस बात को समझे, हमारी मिर्जा इंजीनियर से कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई, मिर्जा साहब की जगह आप समीउल्लाह रखें। लेकिन आपकी जाती दुश्मनी नहीं है, उन्होंने आप पे तनकीद किया है, आपको नहीं फर्क पड़ता। उसी काउंसिल में बैठे हुए मुतअद्दिद लोग हैं जिन पे उन्होंने नाम लेके तनकीद की है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि वो अपनी लफाजी, अपनी तेजी, अपने उसी रिदम में जो वो उन्होंने ऐसे जुमले कह दिए जो तौहीन आमेज़ है। इसका फैसला अदालत ने करना है। ये जो आप लोगों ने भी अदालतें लगाई हुई है ना, खुदा के लिए बात करें, आप उसके लिए मुश्किल बना रहे हैं। आज मैं उसके फॉलोअर से भी कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, ये अदालत का काम है, अदालत उसे बरी करे, अदालत उसे सजा दे, ये मेरा काम नहीं है। मेरे से राय मांगेगी अदालत, मैं कुरान और सुन्नत जितना समझता हूं उसके मुताबिक राय दूंगा। जी नाज़रीन, आपने क्लिप सुन लिया, देख लिया, बाकायदा 1.5 घंटे पर मुश्तमिल पूरा ये इंटरव्यू है, लेकिन सीधा पॉइंट्स हमने आपको दिखा दिए। अब हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, उनका ये कहना है कि भाई मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसिल को भेजा जाए, मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसिल को भेजा जाए, मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसिल को भेजा जाए, मिर्जा साहब ने खुद लिखा कौंसिल को भेजा जाए। मैं जोर दे रहा हूं, मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि कौंसिल को भेजा जाए, और जब उन्होंने खुद लिखा है तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये फैसला जो है या राय जो है ये हमारे हक में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, कि भाई मिर्जा साहब ने खुद लिखा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये रेफर किया जाए, भेजा जाए। लेकिन यहाँ मैं एक मजीद मौलाना ताहिर अशरफी साहब की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज कर दूं कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने यह फरमाया कि हजरत अली हुजवेरी ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनसे ये कहा गया या उनके उस वक्त पेश नज़र ना होगा, जहन में ना होगा। दर हकीकत ये बात 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाली मंसूब की जाती है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की जानिब। तो ये ज़रा मैंने चाहा और समझा कि भाई इस बात को ज़रा ब्रीफ कर दिया जाए। हज़रत अली हजवेरी 90 लाख इंसान उस शख्स के हाथ पे मुसलमान होता है। अब नाज़रीन इकराम, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, वो ये फरमाते हैं कि भाई मिर्जा साहब ने खुद लिखा है कौंसिल को भेजा जाए। मैं हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, उनका एक क्लिप मैं दिखाना चाहता हूं कि जब पॉडकास्ट में मैंने उनकी खिदमत में यही सवाल रखा कि भाई इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जो बैठे उलमाए किराम हैं वो कोई ना कोई मसलक और कोई ना कोई फिरका रखते हैं, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब उनके बकौल वो फिरकों की मंजी ठोकते आए हैं और फिरकों के खिलाफ बातें करते आए हैं, मसाले के खिलाफ बातें करते आए हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बैठे तमाम उलमाए किराम जिनका कोई ना कोई मसलक और फिरका है वो इंजीनियर के हक में कोई राय देंगे या कोई फतवा देंगे? तो ये किस तरह से सोचा जा सकता है? तो हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब ने फरमाया कि सबसे पहली बात तो ये है, अव्वल तो ये है कि ये मुरासिला एनसीसीआई की जानिब से इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजना ही नहीं चाहिए था, ये कानून में मौजूद ही नहीं है, भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। ये हाफिज ताहिर अयूबी साहब फरमा रहे हैं जो इंजीनियर साहब के वकील है। जरा क्लिप देखिए।
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमेशा फिरका वारिद के खिलाफ बात करते रहे और फिर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला सादिर हो गया। FIA का मोजस इदारा ये जानता था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल में जो मोजस उलमा किराम होंगे, जय्यद मुफ्तियान दीन होंगे, वो किसी ना किसी फिरके या मसलब की नुमाइंदगी कर रहे होंगे और ये भी जानते थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फिरकों के खिलाफ बात करते रहे हैं। उसके बावजूद भी मोजस इदारे ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल को ये मसला रेफर क्यों किया, जबकि मोजस इदारा FIA जानता था इंजीनियर साहब फिरकों के खिलाफ बात करते रहे हैं और जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल में हमारे मोअज़्ज़िज़ मुफ्तियान किराम बैठे हैं वो किसी ना किसी फिरके और मसलक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये मामला ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ये है कि ये वहाँ इस तरह का मामला भेजा जाना चाहिए ही नहीं था। ये अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉ है इन्वेस्टिगेशन के, और उनकी तरफ से जो लफ्ज़ फैसला जो ये जो इशू किया गया है, ये भी उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए किया है और अपनी हैसियत को अदालत के बराबर लाने की कोशिश की है। जी नाज़रीन इकराम, हैरानगी है भाई, हाफिज ताहिर अयूबी साहब जो इंजीनियर साहब के वकील है वो ये फरमा रहे हैं कि भेजा नहीं जाना चाहिए था, और हाफिज ताहिर अशरफी साहब ये फरमा रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने खुद खत लिखा है। समझ से बात है, बतौर सहाफ़ी मेरा काम है रिपोर्ट करना, मेरा काम है हक़ाइक़ आपकी खिदमत पर रख देना। अब आप परखिए, समझिए, जानिए, टटोलिए। क्योंकि हाफिज ताहिर अयूबी साहब जो वकील है इंजीनियर साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि किसी सूरत भेजा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यहां एक और बात काबिल जिक्र है कि अगर आपसे इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय ले ली गई या राय मांग ली गई तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल कोई अदालत नहीं है। फैसला देना अदालतों का काम है। मुल्जिम को मुजरिम ठहराना, मुजरिम करार देना या उसको बाइज्जत बरी करना, यह अदालतों का काम है, ना कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक आईनी इदारे का। यह बात मैं आपको बताता चलूं कि बिलफर्ज हम एक तरफ का मौक़िफ़ रखते हैं कि इंजीनियर साहब ने उस खत में लिखा, मुबैना तौर पे हाफिज ताहिर अशरफी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इंजीनियर साहब ने खुद लिखा खत में कि भाई इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बैठे उलमा किराम से राय ले ली जाए। तो अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बैठे उलमा किराम ने राय दे दी तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने कोई फैसला कर दिया। फैसला अदालतें करेंगी, फैसला अदालतें ही करेंगी। उन्होंने उनके बकौल अपनी राय दी कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने तहरीफ कुरान भी की है, इस पर 295 भी लगाई जाए, और मजीद वो कुछ जिक्र करते रहे इंजीनियर साहब की गुस्ताखियों के हवाले से, उनके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स को लेकर जो इंजीनियर साहब बयान करते रहते। तो ये हकीकत है, आज का ये ब्लॉग इंतहाई अहम है, इसको जरा समझने की जरूरत है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे और आपस में हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। हमारे क़ुलूब जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बतों के लिए खोल दे एक दूसरे के लिए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहफ हो गई हो, अल्लाह के हुजूर तौबा का तलबगार हूँ और माफ़ी का खासगार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।